बोलो. Hello. Good evening, ma'am. Good evening, Sakshi. Your name is Sakshi, no? Yes, ma'am. Okay. How are you? Fine, ma'am. So, how come कहाँ आप चेरी में रहते हो बेटा? Ma'am, what are you saying? मैं पूछ रही हूँ आप चेरी में ही रहते हो? No, ma'am. I live in Ajnara Lee Garden. Okay. So we'll have to wait for 2 minutes till the others join. उसके बाद फिर हम एक बार बातचीत करना शुरू करते हैं. Today is the first day. कौन-कौन सी क्लासेस की हुई हैं? Okay, ma'am. साक्षी? जो लोग ऑलरेडी आ गए हैं ज्वाइन कर लिया जिन्होंने वो वीडियो ऑन कर लिया so that I can see that you are available there because I can't see from here. You're not writing anything on over chat also. Chat पर ही good evening, good hi कुछ भी लिखो so that I get to know that okay you're able to see the video. Okay, Sakshi, I can hear you. Sneha, are you here? Okay, Sneha is also here. Hi Sakshi, hi Sneha. Bandwidth अगर लो नहीं है तुम लोगों का तो you can on your video that would be like more interactive. पहली क्लास है, पहली क्लास में ऐसे मैं चेहरा भी नहीं देखूंगी तो मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आएगी. I am teaching. आए प्यारे प्यारे बच्चे. Just for a while, just open your camera so that I can see your face and I can relate it. Hi Sneha. Okay, so Sneha, you can unmute your unmute your speaker so that we can talk. Yeah. Okay. I think something wrong with Sakshi. Yeah. So Sneha, where do you live? Greater Noida, West. You live in Mile Cherry? Pride. Ma'am, now you can see me. Yeah, I can see you, Sakshi. Yeah, nice to see you. You look beautiful, Sakshi. Thank you, ma'am. Sneha, you look too cute. Your smile is very nice. Sneha, कहाँ रहते हो बेटा? स्नेहा कहाँ रहते हो बेटा? Ma'am, Mile Pride. Okay, Himalaya Pride. Okay. So, chalo, there should have been 3-4 more people here, but I don't know why haven't they joined yet. तो आज हमारी पहली क्लास है. Okay. So don't focus over the board because जो भी यहाँ पे लिखा है ये आप लोगों के लिए नहीं है. ये this is for the 8th standard. So how come SST? Are you interested या फिर मम्मी पापा ने जबरदस्ती भेज दिया? Ma'am, not interested, but yeah. Yeah, you can talk freely. अगर SST उतना पसंद नहीं है, let me just. Yeah, I don't like SST, but I like science the most. You like science more, okay? Yes, अब ma'am. choice पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता. Choice तो सबकी अपनी अपनी होती है. What about Yes, ma'am. you, Sakshi? What do you like? Ma'am, I was only saying. Oh, you are Sakshi. What about you, Yes, Sneha? ma'am. Sneha भी disconnect हो गई है. Okay. Gently तो होता नहीं है. तो तब तक साक्षी आप मुझे बताओ why there's so much, not so much like so like why do you dislike this team? What is the problem?
नंबर नहीं आते, याद बहुत करना पड़ता है, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद नहीं है, या फिर समझ नहीं आता है. There has to be a reason, right? Yeah. So what do you think? What is the Actually, reason? there is a lot of learning part. Okay, so if I say that you don't have to learn it, so you'll be like, okay, then I have no problem studying it because I don't have to learn it. I can Yeah. just like that here in class and just like go and write whatever I want to write in my. No, I mean I want to write my things in my own words, but I have problem in writing. You have problem in writing. Okay, that we'll see in Yeah. English class. But as hi Atharva, nice to see you here. Atharva, open your video for a while so that I can see you, how you look. This is first class, so I am more interested in knowing you people. SST का तो क्या है, छोटी सी चीज है, पढ़ेंगे फटाक से आ जाएगी हमें. Yeah, I am too good at it, so I know my students will also be too good at it. So उसमें तो कोई issue ही नहीं है. Sir, I can't see you. Open your video. Oh, you have any issue? Sneha. What about you, Sneha? साक्षी ने तो बोला उसको SST पसंद नहीं है. You like SST? Hi, Athar. Ma'am. साक्षी, you like वो स्नेहा, you like SST? या फिर तुम्हारे साथ भी वही इशू है that you don't like SST? पढ़ना बहुत पड़ता है, नोट्स बहुत बनाने होते हैं, ये सब क्या है? Ma'am, I like SST but history नहीं. Oh, history नहीं पसंद है. For me, it's the I like geography. Oh, you like geography. Nice, nice, nice. Yeah, it is all about the planet, and I like learning more about the planets. That's very good part. अब देखो, मैं एक चीज क्या देखने को मिली कि लोग ना, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती एसएसटी को हेट करना चाहते हैं. प्रॉब्लम ये है कि they want to learn, जिससे कुछ चीजें हमें we can get something out of it. जैसे if you're learning about planets, if you're learning about your environment, you're liking it because you know that you can relate to it. आपको पता है कि ये चीजें अगर मैं सीखूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा है, because I would be like knowing more about the planet. हम दुनिया में कैसे आए, क्या क्या हमारे आसपास चीजें होती हैं. So that's the geography part. So that makes you, somewhat curious about it because you find use of it. ठीक है. लेकिन अभी जब हिस्ट्री की बात की जाती है तो तुम लोग ऐसा होता है, जो पहले हो गया है उसके बारे में मुझे क्यों बता रहे हो? मैं चेंज थोड़ी ना कर दूंगा उसको पढ़ के, क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों क्या फायदा है इसको पढ़ के? I get it, that feeling. Actually, I have had that feeling when I was at your age. हमारे क्लास में टीचर आते थे, used to open a book. I was like, reading. I know in schools how it goes. आपको read करना होता है, then teacher will explain something to you, and then you have to write it in notebook, whatever he or she decides. Then it's all done. Then you have to learn it and then give exam. SST is not about that, beta. SST, you know what? We have to first understand the subject for liking it or not liking it. इसमें आपकी bandwidth थोड़ा low है बेटा. You can off your camera and you can off your mic too, क्योंकि ये थोड़ा अटक रहा है. ठीक है, मैंने आपको देख लिया. I have connected in laptop and phone also. Okay. I can hear two voice. Okay, so you can off one of it, beta. Sakshi, you off one. You open only one of the either phone or laptop. And Sneha, you can off your camera. Your bandwidth is low. यहाँ से ऐसे दिख रहा है Sneha. Your bandwidth is low. Video अटक रही है. You can off it. Yeah. Okay. So what I was saying about the SST part. Okay. जो लोग अभी नए नए join करते जा रहे हैं, Mank, okay, I can see you're joining now. Hi, Hemank. कौन सा? ये वाला चैप्टर. मेरे चैप्टर 2 आ रहा है. बेटा जो लोग घर पे बात करें वो लोग माइक ऑफ कर दे के तब बात करें. ठीक है, यहाँ पर सबको आवाज इको करती है वरना. ठीक है. ओके,
तो हिमांक, अथर्वा, साक्षी, स्नेहा, वी ऑल वर टॉकिंग अबाउट कि आप में से आई एम अज्यूमिंग कि बहुत लोगों को हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद नहीं है, और आई हैव टू डील विद इट बिकॉज मुझे तो पढ़ानी है. आई गेट द फीलिंग. मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं स्कूल में थी, सो आई हैड दिस वन एसएसटी टीचर जो आते थे रोज, और बुक में से हम लोग को रीड करना होता था. I had literally no clue about what he was teaching because I always thought कि अरे बुक में कॉपी में तो लिख ही जाएगा, मेरे को याद करना होगा, then I have to go and write this in exam, कोई बड़ी बात नहीं है. There were some bits and pieces of SST जो मुझे excite करते थे. जैसे थोड़ा ज्योग्राफी करता था, कभी कभी सिविक्स भी मुझे एक्साइट करता था कि अरे इसमें क्या है, पार्लियामेंट कैसी है. मैंने कभी इंडियन पार्लियामेंट को देखा नहीं है, एंड आई हैड टू लर्न अबाउट पार्लियामेंट एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन. तो मुझे लगा कि एक बार अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखूं तो शायद मुझे मजा आए. मैंने कभी इंडियन पार्लियामेंट को नहीं देखा, किसने बनाया होगा इसको. तो कुछ 2 4 5 चीजें ऐसी हैं जो आई थॉट आई लाइक्ड इट. बट देन एट बैक देन आई डिडंट नो कि ये चीजें जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज जब चीजों के लिए अप्रोच वैसी नहीं होगी. वी स्टडी मैथ्स बिकॉज हमारे दिमाग में ये कंसेप्शन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी बहुत काम आएगा, और उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए भी बहुत काम आएगा. देन वी रीड इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज वी थिंक कि ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट है. आजकल इंग्लिश जिसे नहीं आती है वो तो वैसे भी कैसे हो पाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे तो इंग्लिश चलती है, तो सबको आनी चाहिए. Then we learn science because we think at one day most of the people they become engineer. One day would come, I will also become engineer. So, okay, I have to learn science. Science is somewhat exciting also because you have a lot of experiments. You know about chemicals, you know about solid liquid states, then you know about environment, then you know about angle of reflection, refraction. There are a lot of things in science also. आपको लगता है कि ठीक है, इससे मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है. But you don't get about SST is that कि तुम्हारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, सराउंडिंग, ये सब कुछ सोशल साइंस ही तो है. यू लर्न अबाउट पीपल, यू लर्न अबाउट कंट्री कैसे चलती है, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब कैसे इलेक्ट होते हैं, और हिस्ट्री में हमारे से पहले कौन रूलर रह चुका है, ओ अच्छा उसने क्या गलती की अपने टाइम पर. ठीक है, हम आज जहाँ पे रह रहे हैं क्या हमेशा वैसे ही लोग रहते थे, या हमारे पहले कुछ अलग टाइप के लोग रहते थे. जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हमारे पहले बहुत अलग तरह के लोग रहते थे, और वो अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह के काम किए, इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं. इट्स मोर लाइक अ जायंट लूप, राइट. कोई एक काम करेगा, अगर पहले बहुत पहले मैन आए नहीं होते वर्ल्ड में, उन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह किया ही नहीं होता, तो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं वो शायद होती नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती होती. बिकॉज पोटैटोज, चिली, टोमेटोज, ये सारी चीजें इंडिया ने डिस्कवर नहीं करी हैं, ये पोर्तुगीज हैं जो इंडिया लेके आए हैं. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी रियलाइज कि हिस्ट्री का अपना एक इम्पोर्टेंस है. वी गेट टू नो कि पूरा वर्ल्ड किस तरह से आपस में कनेक्टेड है, या ओवर द टाइम ये चीजें रिपीट भी हो सकती है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सो यू हैव टू लाइक गिव ऑल ऑफ इट टू इट, बट आई थिंक इट डिजर्व्स इक्वालिटी. किसी भी चीज को हमें डिसलाइक या लाइक केवल तब करना चाहिए व्हेन वी हैव गिवन एवरीथिंग टू इट. हमने सब कुछ करके देख लिया, वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, वी हैव स्टडीड एवरीथिंग अबाउट इट, और फिर मुझे लगे कि नहीं इसका कोई यूटिलाइजेशन मेरी लाइफ में नहीं है, देन ओनली आई कैन से कि नहीं नहीं दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नॉट गुड. बट अगर मैं उस चीज के बारे में ज्यादा जानता नहीं और बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक कि वो चीज उतनी अच्छी नहीं है, आई थिंक इट इज समवॉट इन क्या उसको बोलते हैं, इनजस्टिस. वो हमें नहीं करना है बिकॉज हम अभी बहुत छोटी एज में हैं, और हमें नहीं पता है कि हम में से कितने लोग इंजीनियर बनेंगे, या हम में से कितने लोग आगे जा करके IAS PCS बनेंगे. वहां तो SST पढ़नी पड़ती है. यू डोंट नो अबाउट योर फ्यूचर. तुम्हारा बेस्ट काम क्या है? तुम्हारा बेस्ट काम ये है कि तुम्हें जो भी सब्जेक्ट दिया जा रहा है उसे तुम्हें इक्वल वेटेज के साथ पढ़ना है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू. अगर इन चीजों का बच्चा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता जिंदगी में, ये मेरे को बताओ सिंपल सी बात कि हमें क्यों पढ़ाते हैं, ये पढ़ाए क्यों जाते हैं. हटा देने चाहिए करिकुलम से, केवल मैथ साइंस पढ़ाओ, बिकॉज दैट्स व्हाट दैट मेक्स दी एवरीथिंग सो इम्पोर्टेंट. तो केवल बच्चों को मैथ साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश SST तो वैसे भी ऐसी चीजें हैं जिनका ज्यादा यूज नहीं है, बट डजंट वर्क दैट वे. ठीक है, पहले तो हमें हमारे दिमाग से ये चीज एकदम निकाल देनी है
एकदम निकाल देनी है ये चीज अपने दिमाग से कि एसएसटी और एक ऐसी चीज है जो मुझे समझ नहीं आएगी। नहीं, यू विल ट्राई इट एंड आई कैन बेट तुमको समझ आएगा। एंड आई कैन बेट वन मोर थिंग ऑल्सो, यू डोंट हैव टू लर्न इट। मेरी क्लास में इफ यू लिसन टू माई स्टोरीज and if you will pay attention to what I say, you don't have to learn it. That's the best part of it. क्योंकि एक बार वो चीज आपके दिमाग में बैठ गई, फिर एग्जाम 1 महीने बाद लिया जाए, 2 महीने बाद लिया जाए, 2 साल के बाद लिया जाए, every time you will be able to say, oh उस वक्त तो ऐसा हुआ था and I know because मुझे उसके बारे में पता है और उसका रीजन पता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एज इट इज वर्ल्ड बुक का आपके दिमाग में बैठा सकती हूँ, लेकिन ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो जिस्ट है चीजों की, जो रीजन है चीजों का, दैट आई विल टेल यू इन डिटेल। और दिस इज व्हाट विल मेक यू, आई थिंक सम ऑफ यू विल फॉल इन लव विद एसएसटी आल्सो। वैसे कुछ लोग 8th 9th तक आते आते यू विल से कि नहीं मैम मुझे अब ये मजा आने लगा, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो लास्ट ईयर मुझे 8th में बच्चे मिले, नाउ दे लाइक एसएसटी, दे लाइक बीइंग नहीं बताओ मुझे क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, आई वांट टू नो अबाउट हिटलर, आई वांट टू नो अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट। So here we are at a very minuscule level. Okay, so considering that मेरी क्लास में बैठा हुआ कोई भी इंसान मुझसे बोर नहीं हो रहा है, इस बोर मत होना, because I think I am, you know, that will be like too rude with such a good teacher। कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं आपको तो आ नहीं रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रही है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, आप चाहे कितना भी कोशिश करो। आप 5% ट्राई करो, मैं 95% ट्राई करती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि कितना हमको आया। once we are done with 2 3 4 chapters, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किसको पसंद आनी शुरू हुई, किसको पसंद आनी नहीं शुरू हुई। ओके ओके, सो कमिंग टू द हिस्ट्री पार्ट ऑफ इट, बिकॉज 20 मिनट की स्पीच हो गई है बहुत बड़ी लाइफ के बारे में। so coming to this part about कि कैसे पढ़े। ठीक, 6th में हमने पढ़ा, देखो पूरी हिस्ट्री बच्चा, पूरी हिस्ट्री का मतलब जो आज हो रहा है उसके पहले का जो भी है वो सब हिस्ट्री है। जो आज हो रहा है वो तो प्रेजेंट है, समझ गए, और जो फ्यूचर में होगा वो तो फ्यूचर ही है। लेकिन आज से पहले जो कुछ भी हुआ है हमारे लिए वो सब हिस्ट्री है। ठीक है, 2018 इज अ हिस्ट्री, 2019 इज हिस्ट्री फॉर यू, क्योंकि तुम 2020 में रह रहे हो और 2020 प्रेजेंट है, उसके पहले का सब कुछ हिस्ट्री है। अब इसको पढ़े कैसे, तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, मतलब बहुत ओवर द इयर्स, हम आज तो पैदा हुए नहीं है, बिग बैंग सुना होगा किसी ने, देयर वाज दिस जायंट गैस और बहुत बड़ा कोलिजन हुआ था लाखों करोड़ों साल पहले, और उस कोलिजन में से छोटे 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 टुकड़े बाहर निकले थे, फिर ओवर द प्रोसेस धीरे धीरे करके वो प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बिग बैंग थ्योरी है, जिससे ऐसा माना जाता है कि ये यूनिवर्स बना है द जायंट इम्पैक्ट। तो वो तो पढ़ेंगे कभी, मजा आएगा, किसी दिन तो स्टोरी सुनाऊंगी। उसके बाद क्या हुआ, लाखों करोड़ों साल गुजर गए, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। ठीक है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि सारी चीजें पता है। अगर करोड़ों साल पहले कुछ हुआ है और तुम मुझसे बोलो मैम वो करोड़ साल पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में जरा बताना, मैं बता तो दूंगी, बट वो अजम्पशन है बेटा, कहीं लिखा नहीं है। आज के साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा है कि उस वक्त वो हुआ होगा, अभी हम पैदा हुए, समझ गए। हमें बस इतनी सी बात समझनी है कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज हिस्ट्री में लिखी नहीं होती है। कुछ पार्ट है जो लिखा है और कुछ पार्ट है जो अभी डिस्कवर्ड होना बाकी है। ठीक है, यही एक डेफिनेशन है जो आपने 6th में पढ़ी होगी, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। समझ गए, प्री हिस्टोरिक पीरियड इज अ पीरियड जिसके लिए कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मतलब शायद तब पेपर पेन नहीं होते होंगे लोगों के पास, और लोगों के पास शायद पेड़ के बाग भी नहीं होती होगी, क्योंकि जब पेपर पेन पे हम लिखते हैं आज, हम तो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, या लैपटॉप पे लिखते हैं, तो हमारे लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना कितना आसान है। हमारे दिमाग में कोई बात आई, हमने फटाक से लैपटॉप पे लिख दी या फिर कॉपी पेन पे लिख दिया। लेकिन हम वही करोड़ों साल पहले, वो लैपटॉप तो डेफिनेटली नहीं था, बहुत लोगों के पास कॉपी पेन भी डेफिनेटली नहीं था, क्योंकि हम तो नए नए इस दुनिया में पैदा हुए थे, नया नया पहला पहला फर्स्ट मैन और फर्स्ट एनिमल, हमें ये भी नहीं पता कि वो मैन था या एनिमल, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसने सांस ले रहा होगा, जो पहला पैदा हुआ होगा, उसको क्या पता लिखना ही ना आता हो, उसने कैसे रिकॉर्ड बनाएगा। इसीलिए कुछ ऐसी हिस्ट्री है, यानी ऐसा मानते हैं कि जब तक इंसान
फाइनली डेवलप हो करके पूरे वर्ल्ड के क्रिएशन के बाद इस लेवल पे पहुंचा, वो कुछ लिख सके, अभी से हमें रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि जब कोई लिखेगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे। हिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ठीक है। अगर हम बस ये तुमसे पूछो मैम हिस्ट्री क्या है, बोलो मैम आज के पहले जो हुआ मेरे लिए तो वो सब हिस्ट्री है। तो आज के पहले तो लाखों करोड़ों साल हो चुके हैं जब तक ये दुनिया बनी थी, बस मुझे इतना पता है कि कुछ चीजों के बारे में हम आज भी नहीं जानते, क्योंकि उनके लिए कोई रिटन रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी ने कुछ लिखा नहीं है, वे जस्ट गेसिंग है, गेस कर रहे हैं बस बैठे बैठे कैसा हुआ होगा, ठीक है। दैट पीरियड इज नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये सिक्स में रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने ली है क्लास, आई नो। हिस्टोरिक पीरियड वो हिस्ट्री का वो पीरियड है, ये है पूरा लंबा, ये इतनी पूरी लंबी लाइन है, ठीक है। इतनी पूरी लंबी लाइन में स्टार्टिंग का ये टाइम जिसके लिए कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पंजे जितना, ये वाला, इसके लिए कुछ लिखा नहीं गया, ये बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। और ये मेरी आम वाला, इसके लिए लिखा हुआ है पूरा रिकॉर्ड, तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। वेरी गुड।